And myself Vikas Shukla, your English literature teacher. How are you? Today I will read about the chapter authorship, section C, unit 7, section C. So you should repeat with me this poem. ऑथरशिप रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको राइट किया है। पहले थोड़ा सा हम ऑथरशिप के बारे में समझ लेते हैं। ऑथरशिप का मतलब होता है कविपन। इसका मतलब है इस चैप्टर में नरेटर ये बताता है, नरेटर एक बच्चा है, वो ये बताता है कि हमारे पिताजी हमेशा डे नाइट राइटिंग का वर्क करते रहते हैं और जब हम अपने पापा के रूम में मीन्स ऑथर्स के रूम में जाते हैं, उनकी किसी पेपर को, कॉपी को, कलम को, पेज को उठाते हैं तो मेरी माँ से हमेशा मुझे डांट मिलती है कि मैं उस रूम में जाऊंगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ही करता रहूंगा। तो इसी के बारे में इस पूरे चैप्टर में बताया गया है। फर्स्ट वी हैव टू रीड अबाउट रविन्द्रनाथ टैगोर। कहता रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज ए ग्रेट राइटर हु रोट ओवर 5000 बुक्स। रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान राइटर थे जिन्होंने लगभग 5000 कार्यों के बारे में लिखा। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर के लिए उन्हें नोबेल प्राइज से अवार्ड भी किया गया। ही इज एप्रिशिएटेड फॉर हिज वेल नोन पोएम्स। गीतांजलि, गीतांजलि पोएम के लिए वो बहुत अच्छे, उन्हें उस गीतांजलि पोएम के थ्रू उन्हें बहुत अच्छी नेम एंड फेम मिली, यानी विख्याति मिली। अच्छे से लोग उनके बारे में जानने लगे और प्रशंसा करने लगे। He was the first non-Western to so be honored. He drew inspiration both from his native Bengal and from English literary tradition, यानी इंग्लिश लिटरेरी ट्रेडिशन से और नेटिव बंगाल यानी बंगाल से होने के कारण उन दोनों का उनको प्रेरणा स्रोत मिलता रहा। वहाँ दोनों जगहों से वो प्रेरणा लेते रहे। His major theme was humanity's search for God and truth. उनका जो मेन थीम था, मेजर थीम था, जो बड़ा उद्देश्य था, was humanity's search for God and truth, यानी ईश्वर के प्रति और सत्य के प्रति इंसान को हमेशा सर्च करना चाहिए, यानी मानवता का उसकी खोज करनी चाहिए, उसके प्रति समर्पित रहना चाहिए। Authorship brings fame and glory in the outside world. It all comes with a price. A writer's little child often wonders what keeps his father so busy and why the same rules set by mother are followed different by him and father. वो ये सोचता है कि उसके जो पिता हैं वो हमेशा बिजी रहते हैं किसी न किसी लेख को लिखने के लिए, यानी किसी न किसी पोएम्स को राइट करने में हमेशा ऑल द टाइम he was busy in writing poems, and his mother followed to him that he should not touch any paper, any ink, any pen or pencils in his father's room. So we let's start the chapter. You repeat with me every line. You say that father writes a lot of books, but what he writes I don't understand. He was reading to you all the evening, but could you really make out what he mean? What nice stories, mother, you can tell us, why cannot father write like that, I wonder. Did he never hear from his own mother stories of giants and fairies and princes? Has he forgotten them all? Often when he gets late for his bath, you have to call him 100 times. You wait and keep his dishes warm for him, but he goes on writing and forget. Father always plays at making books. If ever I go to play in father's room, you come and call me, what a naughty child. If I make the slightest noise, you say, don't you see that father's at work? What is the fun of always writing and writing? When I take up father's pen or pencil and write upon his book,
just as she does. Why do you get cross with me then, mother? You never say a word when father writes. When my father wastes such heaps of paper, mother, you don't seem to mind at all. But if I take only one sheet to make a boat with, you say, child, how troublesome you are. What do you think of father's spoiling sheet and sheets of paper with black marks all over both sides? First of all, some difficult words I write, you write in your copy. Slightest. Slightest, first word, second across. Slightest means small amount. Small amount. कोई चीज थोड़ी सी मात्रा में. सेकेंड वर्ड क्रॉस. CROSS. Cross means angry. ANGRY. And third word heaps. HEAPS. Heaps means a lot of. A lot of. Angry cross means गुस्से में कोई क्रोधित हो. Heaps means a lot of things. यानी कोई चीज का एक भंडार ढेर हो, एक heap हो. So heap means a lot of things. Cross, angry, and slightest means a small amount of anything which is in a small position, small in amount. Clear? So I explain this chapter. Listen very carefully. You say that father writes a lot of books, but what he writes I don't know. तो बच्चा कहता है कि मेरे पिताजी दिन भर पता नहीं क्या लिखते हैं, मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं, मैं कुछ समझ ही नहीं पाता सुबह से शाम तक क्या लिखते रहते हैं. He was reading to you all the evening, but could you really make out what he means? वो सुबह से शाम तक, मॉर्निंग टू इवनिंग, he writes something, but I don't know what was he writing. वो क्या लिखे उसका मुझे मेरे हिसाब से मतलब मेरी समझ के वो बाहर की चीज थी. वो क्या सुबह से शाम तक लिखते हैं. What night stories mother you can tell us? माता से कहा था आप मुझे कभी अच्छी स्टोरी कोई सुनाती ही नहीं. पिताजी पता नहीं सुबह से शाम तक क्या लिखते रहते हैं. Why cannot father write like that I wonder? पिताजी ऐसा क्यों कुछ नहीं लिखते हैं किसी स्टोरी के बारे में जो मुझे सुनाया जा सके. यानी पिताजी को कुछ ऐसा ही लिखना चाहिए जिस स्टोरी को मैं पढ़ के जॉयफुल हूँ, प्रसन्न हूँ, खुश रहूँ. Did he never hear from his own mother's stories of giants and fairies and princesses? क्या वो अपने पिताजी की बात कर रहा है, क्या वो अपने माताजी से या पिताजी से या दादाजी से कभी उन्होंने किसी जायंट की, फेरीज की या प्रिंसेस की, यानी भूतों की, प्रेतों की, राक्षसों की या परियों की या किसी राजकुमारियों की कहानी के बारे में नहीं सुना है? मुझे लगता है इसीलिए वो इन कहानियों के बारे में नहीं राइट करते. He has forgotten them all, या उन सबको भूल चुके हैं. Often when he gets late for his bath, you have to call him 100 times. और ऐसे देखे होंगे आप, जब वो स्नान करने पिताजी जाते हैं, टेकिंग बात करते हैं, आप उनको कई बार सैकड़ों बार बुलाती हैं, बट he did not pay attention at you. वो आपकी बातों पर ध्यान नहीं देते, मतलब वो अपने वर्क में ही बिजी रहते हैं. You wait and keep his dishes warm for him, but he goes on writing and forgets. आप उनको भोजन के लिए, डिश के लिए बुलाती रहती हैं, लेकिन अपने काम में व्यस्त रहते हैं. इसमें but he goes on writing and forgets. लिखने में व्यस्त हैं और भूल जाते कि हमें कोई बुला भी रहा भोजन के लिए. Father always played at making books. हमेशा उनका जो लेख है, यानी जो भी कुछ राइटिंग करते हैं वो मेकिंग बुक पर ही डिपेंड रहते हैं. पढ़ने का काम ही करते हैं, पढ़ने का ही काम करते हैं. If I never go to play in father's room, you came and called me what naughty child. जब कभी मैं पिताजी के रूम में खेलने के लिए चला जाता हूँ, तब भी आप मेरे पीछे दौड़ती दौड़ती आ जाती, प्लीज यहाँ से हटो, यहाँ क्या कर रहे हो. यानी यू आर ए नॉटी चाइल्ड, हमें शरारती बच्चा कह के रूम से बाहर कर देती हैं. If I make the slightest noise, you say, don't you see that father's at his work? कहती हैं आप यहाँ आवाज मत करना. वही स्लाइटेस्ट मानी स्मॉल अमाउंट, छोटा सा आवाज, मतलब स्लोली भी मत बोलना. आप यहाँ से बाहर चले जाओ,
बिकॉज योर फादर इज एट हिज वर्क, क्योंकि वो अपने काम पर है, राइटिंग कर रहे हैं। व्हाट इज द फन ऑफ ऑलवेज राइटिंग एंड राइटिंग? क्या मजाक कर रही मम्मी, बार बार आप बता रही हो पिताजी की ओर राइटिंग एंड राइटिंग का वर्क कर रहे हैं। व्हेन आई टेक अ फादर्स पेन और पेंसिल आई रोट अपॉन हिज बुक, कहते हैं आप कोई उनका पेंसिल उठा लोगे, किसी पेपर पे कुछ लिख दोगे तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए तुम कमरे से बाहर चलो। जस्ट एज ही डज व्हेन डू यू गेट क्रॉस विद मी देन। तो माता जी गुस्से में मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर कर देती। यू नेवर से वर्ड व्हेन फादर राइट, क्या आपने कभी कुछ सुना नहीं कि पिताजी क्या लिखते हैं? When my father wasted such heaps of paper, mother you don't seem to mind it. पिताजी इतना पेपर फाड़ फाड़ के बहाते हैं, यानी एक हीप बना देते हैं, a lot of पेपर्स का वेस्टेज पेपर का एक ढेर बना देते हैं, लिखते नहीं सर फाड़ के बहाते, तब तो आप कुछ नहीं बोलती, और मैं केवल उनके पेन पेंसिल को छू देता हूँ तो आप मेरे ऊपर एंग्री हो जाती हैं। But if I take only one sheet to make a boat with you, say child how troublesome you are. एक पेज लेकर बोट बनाने की कोशिश करता हूँ, एक प्लेन बनाने की कोशिश करता हूँ, तब भी आप मेरे ऊपर बिगड़ जाती है, एंग्री हो जाती है। What do you think of father's spoiling sheet and sheet of paper with black marks all over both sides? उस पे लिख लिख के पिताजी पेपर को इधर उधर फेंकते रहते हैं, फिर भी आपने कुछ नहीं बोल। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में यही था कि बच्चा अपने पिताजी के राइटिंग के बारे में सोचता कि क्या लिखते हैं, मेरी समझ के बाहर की चीज़ें। कभी कभी उनको फेरीज के बारे में, जायंट्स की स्टोरीज के बारे में, प्रिंसेस स्टोरी के बारे में भी लिखना चाहिए जो हमारे लिए यूजफुल हो। सो स्टूडेंट प्लीज रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुल्ली एंड राइट सम डिफिकल्ट वर्ड्स विद दीज 3 वर्ड्स। मतलब ये 3 वर्ड तो लिखने ही हैं, और भी यदि आपको इस चैप्टर में कोई डिफिकल्ट वर्ड लगता है तो उनको राइट करिएगा, उनके आंसर्स को मैं बताऊंगा, और tomorrow I will send the PDF of this chapter. Thank you and have a nice day.